Good morning, everyone. So, after Deepavali, we are hope. I hope that you all have enjoyed Deepavali very well. The festival you have enjoyed very well, and after festival only we are having these classes. So it's good. Now, so today we'll be discussing about the procedure of reorganization of state. As I was discussing it, and finally, because of the time constant, I have to end it. So today I am going to conclude my class from there onwards. Now, see, crack all UPSC civil service optionals with India's largest learning platform. That is India's largest learning platform. So get the subscription of it. So once you'll get the subscription of it, you'll see you'll get daily live classes, and in this daily live classes, you'll be chatting with the educators, you'll be engaging with discussions, doubt, and many more things. Okay. There are altogether 15,000 plus structural courses. 15,000 plus structural courses, and they all are arranged in systematic manner. Live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of learner. Yes, before giving the exams, you'll come to know about it. Unlimited accessibility. So when we say about unlimited accessibility, so if you fail to get daily live classes, you see you can get unlimited accessibility. You can get the recorded classes. Like right now, what I am doing is the recorded class I am providing you because of the festival. Because of the festival, the recorded class is being provided to you all. You can download this app, Unacademic learning app through Google Play or App Store. About educator, you see, I have completed my graduation from Calcutta University in science subjects. I am acting as a mentor for UPSC Civil Service for 11 years and so in public administration, polity and governance, and have appeared for UPSC Civil Service interview twice, and have served in many reputed IS coaching institutions in Delhi and many more states. Under my guidance, many aspirants have cracked UPSC Civil Service exam as well as many state level exams too. You see, along with me, there are top 100 educators. Along with me, there are top 100 educators. And in this slide, you can see that the name of few educators. Okay, name of few educators. Then you see, as I said, that it provides more than 15,000 plus courses. So in this 15,000 plus courses, you can see that this there is polity, governance, geography, science and technology, NCERT summary, history, optional courses, environment. So this is the example of few courses. Okay. And when this is the example of few courses, you see this is always been, and you know that you cannot complete these exams in 1 month, 3 month, or 6 month. But if you take the subscription of 1 month, 3 month, or 6 month, you see you have to pay 10,000. You have to pay if you apply my promo code SDMD or MDYT, you will get 10% discount. And after 10% discount, you see this is the amount which you have to pay after applying my promo code. And as you all know that Unacademy provides two types of courses. One is of plus courses and one is of iconic courses. So for 12 months, you see, if you apply for 12 months, subscribe for 12 months, you have to pay 49,500. But if you apply my promo code, that is SDMD or MDYT, you'll get 10% discount and you have to pay 44,550. Okay. Now, for 24 months, you see, you have to pay 72,000. And for 24 months, if you apply my promo code SDMD or MDYT, you'll get 10% discount and you have to pay 64,800. Similarly, for 36 months, you see 90,000 you have to pay. These are the base fare for plus courses. But if you apply my promo code, you will get 9% discount, 10% discount, and you have to pay 81,000. You have to pay 81,000. So you see, with this 10% discount, if you apply my promo code SDMD or MDYT,
you will get this much discount. For iconic courses, when we talk about iconic courses for 12 months, you see you have to pay 69,500, but if you apply my promo code, you will get 62,550. You'll get 62,550. But similarly, for 24 months, the fees is 1,07,000. But if you apply my promo code, it is 96,300. And for 36 months, you see it's 1,41,000. But you apply my promo code. These are the base fare, and in this fare, if you apply my promo code, that is, you'll get 10% discount, either this or this. MDYT. You'll get 10% discount. And for 36 months, you see you have to pay 1,26,900 if you apply my promo code. Now, as you all know that yesterday I was discussing about union and territories. And we have talked about the background also. Why not federal? Why India is this? Short. These all things we have discussed. Isn't? We have discussed about Article 1 also. And we have also discussed about what is the difference between Territory of India and Union of India. Okay. Union of India. So I have said that Union of India includes Union Territory plus states plus any other territories or what we have acquired. So any territory at any time we acquire, that becomes. Article 2 also I have talked about what establishment of new state. So new state में अंतर क्या है? यहाँ पे किसी foreign country की बात हो रही है. You see, when we are talking about new state, we are talking about any foreign country. We are discussing about any foreign country. So in this way, this things does not apply in India. What does that apply? इसका मतलब कि इंडिया में स्टेट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है. आर्टिकल 2 ये फॉरेन कंट्री के ऊपर अप्लाई होता है. एंड लॉ एडमिट का मतलब होता है जो लॉ पार्लियामेंट पास करेगी. देन यू सी आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 2A. सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था और उसको 36th अमेंडमेंट एक्ट में उसे खत्म कर दिया गया था. व्हाट वाज द रीजन? दैट आल्सो आई हैव सेड. Then you see, we also discussed about the 26th Amendment, that is 36th Amendment Act. इसके आने के बाद से monarchical system was abolished and democracy आ गई and it becomes Indian state. Now see, ये फर्स्ट शेड्यूल में इसे ऐड कर लिया गया. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी न्यू स्टेट फॉर्मेशन कैसे होगा. And when we talk about the formation of new state, you see, this formation of new state includes number 1, forms of new state by separations of territory from any state or by uniting 2 or more states, or part of state by uniting any territory to be a part of any state, increasing the area of the state, diminishing the area of any state, altering the boundaries of any state, and alter the name of any state. So this what we were discussing about procedure of reorganization of state. यानी जो reorganizations यानी स्टेट को स्टेट का दर्जा दिया जाए, उसके लिए यूसी प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट विल बी दी प्रोसीजर. तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि चूंकि नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस in the parliament except on the recommendation of president. Why president? Because president is the head of the state. ये भी हम आपको बता चुके थे. और यहाँ स्टेट का मतलब हम आपको कई बार बता चुके हैं. हेड ऑफ द स्टेट का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री. ओके, सो अब देखिए, प्रेसिडेंट शैल रेफर्स, मतलब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बिल को उस स्टेट में भेजे जहां पे उसका नाम या मतलब कोई चेंज अल्टर होने वाला है, अफेक्ट कर रहा है, और उस बिल के लिए वो एक प्रपोज्ड टाइम देंगे, स्पेसिफिक टाइम. बट रिमेंबर दिस, दैट टाइम इज
nowhere mentioned in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइमिंग मेंशन नहीं है. ओके, ऐसा चीज बिल्कुल कहीं और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ओके, और आप देखिए, अब स्टेट अगर कहती है कि हाँ कर दो और कहती है कि नहीं मत करो, then also it is not binding on the president. यानी रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. तो फिर स्टेट को आप बता क्यों रहे हो? जब आपको हमसे जब आपको मेरी बात एक्सेप्ट करनी नहीं है तो आप क्यों क्यों आप मेरे को बता रहे हो? आपको जब मेरी बात करनी नहीं है तो आप क्यों, why are you giving the bill to state when you don't want to go the recommendation of the state or suggestion of the state? तो इसलिए कि जस्ट आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके स्टेट में ये चेंज होने वाला है. बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, तो फेडरल के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फेडरल के ऊपर लगता है, तो उसमें ये होता है कि आपको हम बता रहे हैं कि हाँ देखिए ये चेंज किया जा रहा है. आपके ऊपर मैंडेटरी है या नहीं ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपको बस ये इन्फॉर्म करने के लिए बिल आपको दिया गया है. और एक स्टिपुलेटेड टाइम में आपने बिल को दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपकी रिकमेंडेशन यस या नो में है. और अगर आप उस स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं दिया तो ये प्योरली दैट इज डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट, ही विल इंक्रीज द टाइम और नॉट. एंड द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट दैट यस यू हैव गिवन योर व्यू. अगर आपने टाइम को लैप्स कर गए, द प्रेसिडेंट विल एक्सेप्ट दैट यस यू हैव गिवन योर व्यू. ओके, सो इसमें 4 स्टेप्स हैं. देयर आर ऑल टुगेदर 4 स्टेप्स इन विच द प्रोसीजर्स आर फॉलोड. टोटल 4 स्टेप्स है. नाउ सी आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग प्रोसीजर. पहला क्या? प्रेसिडेंट रेफरेंस इज सेंट टू द स्टेट लेजिस्लेशन. पहली चीज कि प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है वो पहले उसको स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाएगा. आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अ रेजोल्यूशन इज टेबल्ड एंड पास्ड इन द असेंबली. ओके, ओके, उसके बाद देखिए असेंबली हैज टू पास अ बिल क्रिएटिंग द न्यू स्टेट और स्टेट्स. ये सब स्टेट असेंबली की बात हो रही है, ये अभी पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही. मतलब प्रेसिडेंट को रेफरेंस स्टेट में क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में बिल को सेंड करने से पहले व्हाट आर द प्रोसीजर व्हिच प्रेसिडेंट विल फॉलो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3. So first of all, the president is that the president will send the bill to the state legislature. और प्रेसिडेंट जब उसे स्टेट लेजिस्लेचर में भेज देंगे, देन आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रेजोल्यूशन इज टेबल्ड ऑन द पास इन द असेंबली. यानी जब प्रेसिडेंट ने भेज दिया स्टेट असेंबली के गवर्नर को, गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को दे दिया, तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उस बिल को असेंबली के टेबल पे रखें. असेंबली हैज टू पास अ बिल, मतलब असेंबली को अपने विचार देने पड़ेंगे, चाहे वो पास करे या फेल करे. फेल तो कर नहीं सकती है, यानी पास करेगी कि हाँ हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. ओके, पास करेगी कि हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. इतना जान जाइए, असेंबली पास करेगी कि हाँ हमें पास करना है, फेल करना है. पास का मतलब यहां पे हो कि एदर यू एक्सेप्ट इट और यू डिनाई इट. आपको उस बिल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि स्टेट का नाम चेंज मत कीजिए या स्टेट को अल्टर मत कीजिए, या वॉट एवर द प्रोविजन इज देयर अंडर आर्टिकल 3 दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड. देन अ सेपरेट बिल. अब उनके ये बिल आने के बाद इस बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाता है, उसके बाद कमिटी बनाई जाती है और कमिटी उनके रिकमेंडेशंस को देखने के बाद एक सेपरेट बिल तैयार होता है और इस बिल को भेजा जाता है रेटिफिकेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के रेटिफिकेशंस के लिए भेजा जाता है. रेटिफिकेशन का मतलब है पार्लियामेंट उनको क्या करती है कि अब डिस्कशन करेगी, डिबेट करेगी और उसके बाद क्या करेगी. अब देखिए इसके अंदर क्या है,
The maker of our constitution therefore empowered the parliament to reorganize the state by simple procedure or simple majority. सिंपल मेजोरिटी. अब देखिए, जब सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो देन व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? सबसे बड़ी बात है कि सिंपल मेजोरिटी इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग मेजोरिटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेजोरिटी. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेजोरिटी. यस. और आप देखिए, जब हम वर्किंग मेजोरिटी की बात करते हैं तो नाउ लेट अस सी दैट व्हाट डज सिंपल मेजोरिटी मींस. So you see, I'll be explaining what do you mean by simple majority. सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं? जबकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है. सामान्य बहुमत क्या है ये कहीं भी मेंशन नहीं है. ओके. और आप देखिए कि जब हम वर्किंग मेजोरिटी की बात करते हैं तो नाउ लेट अस टेक अबाउट सिंपल मेजोरिटी. व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? अब जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी सेज दैट more than 50% of the members present and voting, excluding abstained, excluding abstained. तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या होता है. एब्सटेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सटेंट? एब्सटेंट का मतलब होता है द मेंबर दोज हु आर प्रेजेंट, member those who are present but did not cast the vote. But did not cast the vote. इसका मतलब ये हो गया कि मेंबर जो प्रेजेंट है पर वो वोट नहीं किए. ठीक है, इसे हम सिंपल मेजोरिटी में लेते हैं. और एग्जाम्पल लिया जाए. नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल वी टेक फॉर लोकसभा, क्योंकि बिल कोई भी लोकसभा से ही ज्यादातर आती है क्योंकि ये पॉपुलर हाउस है, तो हम लोग लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं. लोकसभा में यू सी सपोज देयर आर 545 मेंबर्स. ये टोटल मेंबर्स है. टोटल मेंबर्स 545 के बाद यूसी अगर वोटिंग करने के लिए गए 400 लोग, सॉरी
sorry, 400 log was present, they did not cast the vote, present. And you see 300 member cast the vote. तीन सौ लोगों ने वोट दिया है, तो हम किसके ऊपर जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, यू से इट सेज मोर देन 50%, तो मोर देन 50% का मतलब होता है 50% प्लस 1, यानी 50 प्लस 1 हो गया 51, यानी इससे ज्यादा 51 या 51 से ज्यादा हम कहेंगे मोर देन 50% हो गया। तो अब देखिए ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है, इसमें 400 लोगों ने बिल के लिए प्रेजेंट थे वोट करने के लिए, किंतु वोटिंग की टाइम में 300 लोगों ने किया, तो इट सेज दैट मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी ये प्रेजेंट है और ये वोटिंग की है, एक्सक्लूडिंग एब्सटेन्ड। एब्सटेन्ड का मतलब कि जो मेंबर प्रेजेंट है पर यहां से यहां इन लोगों ने वोट नहीं किया, सो दीज मेंबर वर एब्सटेन्ड। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 150 प्लस 1 इज इक्वल टू 151 इज दी सिंपल मेजॉरिटी। 151 इज द सिंपल मेजॉरिटी। ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया गया। बजट इसी से पास होता है, फाइनेंस बिल इसी से पास होता है, स्टेट वाला जो अभी है इसी से पास होता है। ओके, ये स्टेट वाला भी इसी से पास होता है। ओके, और आप देखिए कि इस बेसिस पर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो रही है। दिस इज व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी। तो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस देयरफॉर एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी देखिए मैंने आपको बताया कि क्या है, दिस इज व्हाट इज द सिंपल मेजॉरिटी, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। The essence of which is that the affected state or states may express their view but cannot resist the will of the parliament. Yes, यानी essence, इसका मतलब कि क्रक्स क्या है, what is the crux? What is the crux? What is the crux? यानी इसका क्रक्स ये है कि दी अफेक्टेड स्टेट में एक्सप्रेस देयर व्यू, मतलब उनके विचार को हम जान गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब ये आपके विचार टोटली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली आपके विचार नहीं चलेंगे, यानी आप पार्लियामेंट के व्यू को रेजिस्ट नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हो कि मेरे विचार ये हैं और आप उसको मत करो, नहीं कर, नहीं, सेंटर चाहेगी कर देगी। तो पार्लियामेंट, इस केस में पार्लियामेंट को अपर हैंड दिया गया, दैट इज व्हाई स्ट्रॉन्गर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स सेंटर, स्ट्रॉन्गर सेंटर। अभी तेलंगाना का रिसेंटली 2014 Telangana state was passed. Telangana state was passed. आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को हटाया गया और आप देखिए कि देयर दी स्टेट रेजिस्ट, आंध्र प्रदेश ने रेजिस्ट किया कि नहीं मत करो, बट फिर भी आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया। इसका मतलब कि आपके व्यूज और एक्सप्रेस हम जान गए, आप हमें ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ दिस। नाउ
आर्टिकल 4, सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 के तहत देखिए तेलंगाना आया रिसेंटली 2014। 2000 में 3 नए स्टेट आए, दैट इज झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ओके, 3 नए स्टेट आए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। और उसके बाद आप देखिए, देन यू सी हरियाणा आया पंजाब से। तो मैंने आपको बताया ना कि 22 स्टेट्स, सिक्किम जो था सिक्किम वॉज 22nd स्टेट, और आज हमारे पास 28 स्टेट आ गए। तो आप देखिए कितने स्टेट डिमार्केट हो गए, 6। जबकि जब अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसके कुछ इश्यूज हैं। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बताया था 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज, और ये इश्यूज थे 1956 में। और जब ये 1956 में थे, तो आप देखिए कि 1956 से लेके 2019 तक इसके डबल स्टेट हो गए, और यूनियन टेरिटरी भी 2 बढ़ गए। यस, 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गए। दिस इज ऑल्सो द इशू। नाउ सी, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 4 के ऊपर। आर्टिकल 4 कहता क्या है? यानी आर्टिकल 4 कहता है कि अगर, सिंपल टर्म्स में हम आपको बात करते हैं, बहुत सिंपली समझा रहे हैं, समझ जाओ कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी संशोधन किया जाता है, कोई भी अमेंडमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा अंडर आर्टिकल 368। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, आर्टिकल, क्योंकि आप अगर किसी बुक में पढ़ेंगे ना, जैसे डीडी बासु में, डीडी बासु बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में समझाया है, लक्ष्मीकांत, उसमें भी जल्दी समझ में नहीं आएगा, काफी ट्विस्टेड है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 4 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट एनी सच लॉ मे मेक सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल, यानी ऐसा लॉ जो बनाया जाए, सप्लीमेंट करता हो एक दूसरे को। दूसरा, इंसिडेंटल हो, अचानक से बन गया हो, और कंसिक्वेंशियल हो, प्रोविजन फॉर मेकिंग इटसेल्फ अफेक्ट एंड मेनी अमेंडमेंट एंड मे अमेंड फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो आप देखिए कि जब हम बात करते हैं फोर्थ एंड फर्स्ट शेड्यूल, तो इन सब चीजों के ऊपर इफ यू सी, कैन यू टेल मी, कोई मुझे कमेंट करके कह सकता है कमेंट बॉक्स में कि फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट? यानी अगर आप देखें तो फोर्थ शेड्यूल के बारे में, स्टेट के बारे में ही है, दैट इज, फर्स्ट शेड्यूल तो यूनियन एंड टेरिटरीज होगा। फोर्थ शेड्यूल कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स, दैट इज रिलेटेड टू राज्यसभा एंड लोकसभा। दैट इज रिलेटेड टू लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनके जो होंगे, विदाउट गोइंग थ्रू अ स्पेशल फॉर्मेलिटीज ऑफ लॉ फॉर द अमेंडमेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन और माई कॉन्स्टिट्यूशन,
as prescribed under Article 368. यानी इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अगर आपको कोई चेंज करना है विदाउट गोइंग थ्रू स्पेशल फॉर्मेलिटी ऑफ द लॉ, यानी इसमें कोई चेंज करना है विदाउट स्पेशल फॉर्मेलिटीज एज इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 368, यू मेक इट मे. For the amendment of the constitution, not my and me, amendment of the constitution as prescribed, मतलब अगर आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कोई भी चेंजेस करने हैं तो विदाउट, मतलब उसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस नहीं जाकर, फॉर्मेलिटीज को नहीं निभाकर, as prescribed under article 368, this you can do it by simple majority. दिस यू कैन डू इट बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप इसको कर सकते हैं. ओके, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज एनी चेंज इन आर्टिकल 2 and 3, यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट यानी नई कंट्री की बात हो रही है, फॉरेन कंट्री, एंड दिस सेज अल्टरेशन, डिमार्केशन, नेम चेंज, एरिया चेंज, change etc of the state, of existing state, existing state of India, existing state of India. ओके, तो उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा. जैसे इंदिरा गांधी ने 36 अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, दैट वाज थ्रू 1975 में, इट वाज प्योरली बाय सिंपल मेजॉरिटी. और आर्टिकल 2 में भी किसी स्टेट को स्टैब्लिश करना है कंट्री को, तो वो भी सिंपल. तो इसके लिए हमें स्पेशल प्रोविजन दैट इज अंडर आर्टिकल 368, वी डोंट हैव टू गो फॉर इट. जी, हमें इसके लिए नहीं जाना पड़ेगा, स्पेशल प्रोविजन के लिए हमें नहीं जाना पड़ेगा. दिस इज वेरी ट्रू. ओके, सो नाउ सी, अब हम लोग आते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस के हिस्ट्री पे. जैसे मैंने बताया, तो हमने आपको जस्ट नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशंस. बिफोर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप खोलेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. जी, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, बस हम आपको यही एक्सप्लेन किया, इसके अलावा मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया था मैंने उसे एक्सप्लेन किया. अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि स्टेट जो आज ये डिमांड कर रही है कि हमको नया स्टेटहुड चाहिए, वो क्यों कर रही है और किस बेसिस पे कर रही है, इसको भी देखना जरूरी है. इसे देखना बहुत जरूरी है. ओके, तो अब आते हैं हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के ऊपर. अभी कमीशन नहीं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इश्यूज है. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इशू.
ओके, ये इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंट क्रिएट नहीं किया गया। यहाँ जो हम लिखे हैं कि दिस इशू हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंट, कि भाषा के आधार पर द स्टेट नाउ डिसाइडेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज द स्टेट शुड बी डिवाइडेड, रीऑर्गेनाइज्ड। ओके, on the basis of this, how does the state reorganized? जी, यानी भाषा के आधार पर राज्यों को राज्य का दर्जा दिया जाए, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम अराइज हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सीज। बट आप ये जान जाए कि ये भाषा के आधार पर जो ये लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सीज है, ये हमारा अपना नहीं है। अगेन इट इज अ ब्रिटिश लीगेसी। अगेन दिस इज अ ब्रिटिश लीगेसी। जी हाँ, ये ब्रिटिश लीगेसी है। और अगर हम इस ब्रिटिश लीगेसी को कहते हैं, तो कैसे सर? नाउ यू विल से सर हाउ इट इज अ ब्रिटिश लीगेसी। आजादी के बाद तो भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा चालू हुआ सर। आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली यू सी द स्टेट डिमांडेड दैट दे शुड गेट द स्टेटहुड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। तो कैसे सर हाउ इट इज अ ब्रिटिश लीगेसी? सो नाउ सी दिस इज अ हिस्ट्री। हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री अपने आप में हिस्ट्री होता है, इतिहास अपने आप में इतिहास होता है। इफ यू नोटिस, तो आप अगर देखेंगे, इफ यू नोटिस कि 1905, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब हम इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कहते हैं, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किस बेसिस पे किया गया था? भाई मुस्लिम लीग जो खोली गई थी, वो किसको खुश करने के लिए? और 1909 में जो प्रोविजन दिए गए थे, किसको खुश करने के लिए? किसको? ये केवल और केवल भाषा के, लैंग्वेज के आधार पर। लैंग्वेज के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। तो उस दौर से आप देखिए कि एक रास्ता दिखाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि देखो कैसे विभाजन किया जाता है। और उस वक्त जो विभाजन करने वाले गवर्नर थे, वो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कर्जन, ब्रदर कर्जन। तो ब्रदर कर्जू ने, मतलब कर्जन भैया ने क्या किया कि हमारे देश का, बंगाल का बंटवारा करवा दिया, और भाषा के आधार पर। अब चूंकि उस वक्त हमें इंडिपेंडेंस चाहिए था, हम उसके लिए उस वक्त भी देखिए बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा तो।
और रक्षाबंधन का त्योहार शायद उस दौरान ही बहुत अच्छे से लोगों में देखा गया, isn't? तो अब आप देखिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो गई, स्टेट इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया वर नॉट सुटेबल फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन. One of the proposal was to reorganize the state on the basis of language of India. और जो ब्रिटिश इंडिया से जो हम आजादी पाए हैं, इतना आसान नहीं था एडमिनिस्ट्रेट करना. और एक प्रपोजल था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे हो, भारत के लैंग्वेज पर. तो भारत में तो मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज यूज होते हैं, इसका मतलब मल्टी डायमेंशन के आधार पर राज्यों को बांटा जाए. इसका मतलब तो यही हुआ ना. और और उनका दलील ये था कि अगर ऐसा करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बहुत इजीली गवर्न होगा एंड वुड हेल्प रिप्लेस द कास्ट रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी विथ लेस कंट्रोवर्सीज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. देख लिए, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को अगर आप बांट रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा, कास्ट रिलीजन को जो आइडेंटिटी है उसकी कंट्रोवर्सी कम होगी भाषाओं के आधार पर. ये उस वक्त का दलील दिया गया था. किंतु जब भारत आजाद हुआ तो पर्टिकुलरली ये समस्या चालू हुआ, पर्टिकुलरली southern part of our country. और सर्दन पार्ट ऑफ आवर कंट्री में नोटिस कीजिएगा तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास, क्योंकि उस वक्त आंध्र प्रदेश भी मद्रास का ही पार्ट था, क्योंकि मद्रास बहुत बड़ा पार्ट था. सो तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास. और वहां के लोगों ने डिमांड किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाए. उसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कमिटी बनाई गई. हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे एंड दैट विल डिस्कस ऑल्सो. अब देखिए इसकी हिस्ट्री के अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो नाउ लेट अस गो बिफोर इंडिपेंडेंस. आजादी से पहले इसकी क्या सिचुएशन थी. अर्ली 1920 द मेंबर ऑफ Indian National Congress has agreed on the linguistic reorganization of Indian state as one of the party's politics goal. आप पहले ही डिसाइड कर चुके थे, यानी अर्ली 1920 से पहले ही आप ये डिसाइड कर चुके थे आईएनसी के मीटिंग में कि हम भाषाओं के आधार पर भारत का विभाजन करेंगे और पार्टी पॉलिटिक्स का गोल भी एक तरह से दिस शुड बी वन ऑफ द गोल ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स. उस दौर के टाइम की बात हो रही है व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंस, रिमेंबर दिस. और जब भारत आजाद नहीं था तब की मैं बात कर रहा हूं, ओके. तो उस दौर के टाइम में यू सी इट वाज सेड. But soon after independence, the Congress-led government became concerned that the state formed solely on linguistic basis might be unsuitable and might even pose risks for the national unity. आपने तो आक्रोश आक्रोश में देश को आजाद दिलाने के लिए आपने तो बहुत बड़ा बात कर दिया कि 1920 से पहले आईएनसी के मीटिंग में आपने ये डिमांड कर लिया कि हाँ भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो, और आपने क्या कर दिया कि वन पार्टी ऑफ पार्टीज, और ये आपका एक गोल रहा पार्टी पॉलिटिक्स का.
बट जब आप आजादी पा गए, when you got independence, so at that time the Congress led government, क्योंकि पूरे देश में, लगभग पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, so Congress led government became concerned that the states formed solely on a linguistic basis, यानी अगर स्टेट को केवल भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, वो हमारे देश के नेशनल यूनिटी के लिए खतरा बन जाएगा, सो दैट विल बी अ थ्रेट फॉर द नेशनल यूनिटी। इसका मतलब कि हमारे स्टेट को अगर आप भाषा में बांटेंगे तो नाउ इंडियन स्टेट विल बी कॉल्ड एज लिलीपुटियन स्टेट। लिलीपुट का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे, ओके, लिलीपुटियन स्टेट। और आप देखिए कि इन 19, अच्छा, आजादी के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि particularly from the southern area, the demand was arose that the state should be divided on the basis of language. So this was the threat which the then prime minister realized it. ये एक थ्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर को रियलाइज हो गया। एज अ रिजल्ट, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिंग्विस्टिक प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा अकाधार कमीशन, यानी धार कमीशन, पॉपुलरली इट इज कॉल्ड अकाधार कमीशन, to recommend whether the state should be reorganized on the basis of language or not। यानी ये कमीशन राष्ट्रपति द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में कॉन्स्टिट्यूट करके कहा कि आप इसको देखें कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया जा सकता है कि नहीं। Can the state should be divided on the basis of language or not? उसने अपना 1 दिसंबर 1948 को रिकमेंडेशन सौंपा और स्टेट शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। The commission recommended that the formations of the provinces on exclusively or even mainly linguistic consideration is not in largest interest of Indian nation। यानी अगर भाषा के आधार पर हम अगर स्टेट को डिवाइड करते हैं तो इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा, मतलब लार्जली इंटरेस्ट में नहीं होगा। ये रीजनल इंटरेस्ट जरूर हो सकता है क्योंकि रीजनल पार्टी इमर्ज्ड है, तो रीजनल इंटरेस्ट जरूर हो सकता है, बट देश के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए ये कहने के बाद क्या हुआ, तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास, वहां प्रॉब्लम चालू हो गया, छोटे मोटे small violence created। So as a result, again it recommended to reorganizations on the province of Madras, Bombay and Central Province and Berar primarily on the basis of geographical contiguity, finance, self-sufficient and ease of administration। अब इन्होंने तो रिकमेंडेशन दे दिया धार कमीशन ने कि भाषा के आधार पर मत बांटिए, और प्रॉब्लम कहां चल रहा था, तो मद्रास में ही था। तो इन्होंने देखा कि मद्रास और बॉम्बे और सेंट्रल प्रोविंस बहुत बड़ी प्रोविंस है, तो इन्होंने कहा कि ज्योग्राफिकल एरिया को ध्यान में रख के इन्हें डिवाइड किया जाए। ज्योग्राफिकल एरिया को देखकर वहां छोटे मोटे वायलेंस चालू हो गए। तब द देन प्राइम मिनिस्टर सून आफ्टर द रिपोर्ट, जब रिपोर्ट ये पब्लिश हुआ, द कांग्रेस एट जयपुर सेशन,
ज्यादा समय इन्होंने नहीं लिया, जैसे पब्लिश किया 1948 में ही कांग्रेस ने जयपुर सेशन में सेटअप जेवीपी कमेटी। और जेवीपी कमिटी यानी दिस कमिटी इज पॉपुलरली नोन एज जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया was the president of Congress and Vallabhbhai Patel, you know who was he? He was the home minister or deputy prime minister and Jawaharlal Nehru was the prime minister. अब इन तीन मेंबर्स ने धार कमीशन के रिकमेंडेशंस को देखने के लिए क्या किया, कमेटी बनाई। ओके, नाउ द कमिटी के फुल नेम है जवाहरलाल नेहरू, एज आई सेड, वल्लभ भाई पटेल, एंड इन एडिशन द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज पट्टाभी सीतारामैया। आईएनसी के मीटिंग में प्रेसिडेंट को चूज किया जाता था तो उस वक्त पट्टाभी सीतारामैया हुआ करते थे। एंड इन इट्स रिपोर्ट डेट 1 अप्रैल 1949, इन्होंने 4 महीने में अपना रिपोर्ट जमा कर दिया। और इन्होंने भी कहा कि स्टेट का जो डिमार्केशन है, बंटवारा, that the time was not suitable for the formation of new state on the basis of language। यानी इन्होंने भी एस के धार कमीशन के रिकमेंडेशन को कुछ हद तक माना और कहा कि भाषा के आधार पर स्टेट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। That the time was not suitable for the formation of new province, but also stated if public sentiment is insisted and overwhelming, we as Democrats have to submit to it, but subject to certain limitation in regards to the goods of India as a whole। यानी उन्होंने कहा कि अगर तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम स्टेट नहीं डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स उससे जुड़ा हुआ है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। सर्टेन लिमिटेशन इन दिस रिगार्ड कि हमारा इंडिया एज अ होल ना टूटे, दैट इज इंडिया एज अ होल ना टूटे। तो इन्होंने भाषा के आधार पर स्टेट को डिमार्केट करने से एस के धार कमीशन भी और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया ने मना कर दिया। A very popular leader called पोट्टी श्रीरामुलु, कांग्रेस के बहुत पॉपुलर और बहुत सीनियर लीडर माने जाते थे वो उस वक्त। पोट्टी श्रीरामुलु went on hunger strike। went on hunger strike और हंगर स्ट्राइक के बाद उन्होंने 56 डेज का फास्ट रख लिया। अब जब आप 56 डेज तक फास्ट रखेंगे तो योर आत्मा विल मीट विद परमात्मा, मर गए। और क्या किया गया कि मद्रास से आंध्रा को निकाला गया एज अ न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसकी हिस्ट्री हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है। नाउ सी, तो अब क्या है कि उन्होंने क्या किया कि पोट्टी श्रीरामुलु ने went on hunger strike and
On 16 December 1952, after undertake fast unto death. ओके, अब क्या हुआ कि जब वो मर गए, क्योंकि वो फास्ट अंडू डेथ चले गए और वो 56 डेज तक फास्ट रहे, और वो 56 डेज के फास्ट होने के बाद ये मर गए, तो यू सी फ्रॉम मद्रास तेलुगु मेजोरिटी स्टेट आंध्रा केम आउट इन 1950। अब ये पूरे देश में कहते हैं ना कि चिंगारी की तरह, एटम बॉम्ब की तरह फूट गया, कि यानी अगर स्टेट डिमांड करती है भाषा के आधार पे तो उसे स्टेटहुड दिया जा रहा है। उसे स्टेटहुड दिया जा रहा है। ओके, और स्टेटहुड दिया जा रहा है। अब इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कमीशन बनाई जिसका नाम रखा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। भाई जवाहरलाल नेहरू को थ्रेट हो गया कि अगर ये भाषा के आधार पे 1953 में अभी आंध्रा निकला है, और अगर भाषा के आधार पे बहुत सारी स्टेट निकल आए तो फिर देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, यानी चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली के अंदर, ही वॉज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड 2 मेंबर Kalvam Madhav Panikar and H.N. Kunjru. The committee submitted its report on 30th September 1959 and accepted following recommendation, यानी उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस को मान लिया और फाइनली उसने ये भी माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए। बट वन स्टेट वन रिलीजन का कॉन्सेप्ट दे निग्लेक्टेड इट। ये वन स्टेट वन रिलीजन का कॉन्सेप्ट निग्लेक्ट कर दिया, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट निग्लेक्ट कर दिया। और कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन 30 सितंबर 1955 में दिया विद फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, द 3 पार्ट ए बी सी, हालांकि 4 पार्ट थे। उस वक्त हमारी जो स्टेट डिवाइडेड थे वो 29 स्टेट्स थे और वो 4 पार्ट में थे, दैट इज ए बी सी डी। तो डी को इन्होंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ये कमिश्नरेट थे, केवल एक ही स्टेट था, ओनली 4 स्टेट, नॉट 1, 4 स्टेट। तो अब देखिए, बट उस वक्त एक हो गया था, इससे पहले 4 था, अब उस दिन उस वक्त एक था। तो ये एबीसीडी का जो ये कॉन्सेप्ट था कि स्टेट ब्रिटिश इंडिया का होगा, प्रोविंसलेस का होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला कि इसको बंद कर दो। यानी उस वक्त स्टेट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ करते थे, उसे बंद कर दिया इन्होंने। द इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुखा एंड स्पेशल एग्रीमेंट विद द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट शुड बी अबॉलिश्ड। यानी जो राजा महाराजाओं के साथ स्पेशल एग्रीमेंट किया गया था कि राज्यों के हिसाब से कि उनको क्या मिलेगा, कैसे दिया जाएगा, ये सारा चीज को अबॉलिश करो। द जनरल कंट्रोल वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 370 शुड आल्सो बी अबॉलिश्ड। यानी 371 आर्टिकल के अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जनरल कंट्रोल करेगी, इसको भी बंद कर दिया जाए, इसे भी अबॉलिश किया जाए। ओनली द फॉलोइंग 3 स्टेट be the Union Territory, Andaman Nicobar Island, Delhi and Manipur, उसको इन्होंने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। एंड अदर सी एंड डी टेरिटरी शुड बी मर्ज्ड विद एडजॉइनिंग स्टेट, यानी जितने भी सी और डी टेरिटरी थे उनको मर्ज कर दो एडजॉइनिंग स्टेट्स के साथ। ओके, तो फाइनली इस रिकमेंडेशंस को अगर आप देखें तो पार्ट 1 में, पार्ट 1 स्टेट विच फॉर्म्स
फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी टोटल स्टेट कैसे थे, were ruled by an elected governor and state legislature. The 9, यानी इसके अंदर पार्ट 1 में 9 स्टेट थे। आप देख सकते हैं आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। पार्ट 2 में 8, और ये सब स्टेट्स के नाम आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 3 में 10, यानी आप देखिए 9, 8, 10, ये टोटल कितने हो गए? तो 17 और 10 27, और ये स्टेट के नाम दिए गए। और बाद बाकी जो स्टेट थे, पार्ट डी सोली ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्टेट विच वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम लोग यूटीज में डाल दिए। तो इन्होंने सब पार्ट को खत्म कर दिया, यानी पार्ट ए बी सी एंड डी सबको खत्म करके 2 पार्ट में कर दिया, ए और बी। एक कर दिया स्टेट और दूसरा कर दिया यूनियन टेरिटरी, जो आज भी पॉपुलर है। ओके, जो आज भी पॉपुलर है। तो इन्होंने क्या किया कि टोटल ऑफ 29 स्टेट्स को इन्होंने खत्म करके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में इनके रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। इसलिए इसको कहा जाता है, इसी वक्त से कहा जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी अब स्टेट का जो डिवीजन होगा वो इसी बेसिस पे होगा। सिंस आवर टाइम हैज एंडेड, हमारी टाइम खत्म हो रही है और खत्म हो चुकी है। सो नेक्स्ट पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। Okay, tomorrow I'll be explaining the next class. Okay then, till then, bye. If you have any doubt, you can ask me in the comment or chat box. Okay then.